we'll see the pharmacological actions of acetylcholine और parasympathetic nervous system के actions. So pharmacological actions of acetylcholine. So acetylcholine if given orally, इसको तो orally दे नहीं सकते. Acetylcholine if given orally, it is hydrolyzed and it is destructed by gastric juice. इसका destruction हो जाएगा gastric juice की वजह से. So it is not given orally. When given intravenous route, considerable amount of acetylcholine is destroyed by pseudocholinesterase present in the plasma and true cholinesterase present in the neurons or site of action. इंटरवेनस भी अगर acetylcholine देंगे तो भी उसका तकरीबन 50-60% डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. ठीक है, जीआई ओरली तो दे ही नहीं सकते. अगर आईवी भी दे दिया तो भी थोड़ा सा बहुत अमाउंट जो है वही रीच होता है एट द सिस्टमिक साइट ऑफ एक्शन. सो acetylcholine if given orally, it is distributed by gastric juice. If given intravenously, some amount of this drug is metabolized by pseudocholinesterase, and if it reaches to its neuron, then it is metabolized by true cholinesterase, and only few amount of drug that can show the action. Now, what are the actions? Let's see the actions of acetylcholine. First, we'll see on cardiovascular system. So, okay. So, what is the action of acetylcholine on heart? जो heart होता है आपका, उसमें क्या action? So it depresses the SA node and causes bradycardia. So that is nothing but the negative chronotropic action. So जैसे adrenaline होता है, adrenaline noradrenaline, it has a positive inotropic action, positive chronotropic action. So acetylcholine उसके opposite. So acetylcholine has a negative inotropic action, negative chronotropic action. Adrenaline क्या करता है? हार्ट को स्टिमुलेट करता है. acetylcholine क्या करेगा? डिप्रेस करेगा. So it depresses the SA node, causes bradycardia. It can cause cardiac arrest. Decreases the contractility of muscle. Okay. Negative inotropic effect. It causes AV conduction block. Okay. The actions are blocked by atropine. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा? ये हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज करेगा. सो नेगेटिव इनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन हार्ट. Now these actions of acetylcholine can be blocked by. Now what is the action on blood vessels? So vasodilation of skin and mucous membrane because of the EM3 receptor. EM3 receptor कहाँ पे होता है? वैसो ब्लड वेसल के ऊपर होता है. EM3 is inhibitory in nature. So stimulation of EM3 receptor. Stimulation of endothelium leads to release of nitric oxide which causes vascular relaxation. If vascular endothelium is damaged, then acetylcholine causes vasoconstriction. तो ब्लड वेसल जो है उसके ऊपर होता है EM3 receptor, ब्लड वेसल के स्मूथ मसल. So smooth muscle of blood vessel is innervated with the cholinergic EM3 receptor. Stimulation of this EM3 receptor leads to release of nitric oxide which causes vascular relaxation. So blood vessel पे क्या एक्शन है उसका? रिलैक्सेशन. एड्रेनालिन का क्या एक्शन था ब्लड वेसल पे? कॉन्ट्रैक्शन. तो इसके अपोजिट में ये. नाउ अदर स्मूथ मसल्स. ठीक है, ये हो गया ब्लड वेसल का स्मूथ मसल. अभी अदर. सो स्मूथ मसल ऑफ जीआईटी के स्मूथ मसल के ऊपर क्या एक्शन है? So increase in the tone and rhythmic activity and enhances the peristalsis. Exactly opposite to noradrenaline. Noradrenaline क्या करता है? It will inhibit the peristalsis. So acetylcholine will increase the tone and rhythmic activity of GIT's smooth muscle and it will enhance the peristalsis. Contraction of smooth muscle and relaxation of sphincter. Okay, so that peristalsis will be there. Contraction of smooth muscle of gallbladder and detrusor muscle of urinary bladder. ठीक है, तो इस पे देखो acetylcholine will cause relaxation, contraction of smooth muscle of gallbladder and detrusor muscle. तो एड्रेनालिन क्या करता था? जब आप भाग रहे हो, जब आप दौड़ रहे हो शरीर से बच के, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका ट्राइगोनल का स्मूथ मसल जो है वो क्या हो गया? रिलैक्स हो गया था और स्पिंक्टर क्या हो गया था? कॉन्ट्रैक्ट हो गया था. अभी यहाँ पे अपोजिट होगा. द मसल स्मूथ मसल विल बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्पिंक्टर विल बी रिलैक्स. So that you can pass urine. जब if you are under the influence of adrenergic system, you will not able to pass your urine. When you are under influence of cholinergic system, you will be able to pass the urine. Now secretions. So whatever the glandular secretions are there. So acetylcholine increases the gastric, intestinal and pancreatic secretion. It also increases the bronchial secretion, salivary, lacrimal and nasopharyngeal secretion. ठीक है, जब आप भाग रहे होते हो शेर से, जब आप भाग रहे होते हो, जैसे शेर से बच के भाग रहे हो, उस टाइम पे क्या है कि आपका जीआईटी का सिक्रेशन पूरा बंद था. ठीक है, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन पूरा बंद था, ब्रोंकियल सिक्रेशन पूरा बंद था, सलाइवरी सिक्रेशन बंद था. मुंह आपका, आपके मुंह में मतलब सलाइवरी सिक्रेशन नहीं था.
दैट वाज द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन. नाउ एसिटिलकोलिन उसके अपोजिट है. सो एसिटिलकोलिन विल इंक्रीज ऑल द सिक्रेशंस. ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे आपको पॉइजनिंग होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस का या फिर एसिटिलकोलिन का ओवरडोज हो गया तो क्या होगा कि पूरे सिक्रेशन बढ़ जाएंगे. जो जैसे किसी ने पेस्टिसाइड ले लिया तो उसके मुंह में से झाग आता है ना. मुंह में से झाग आना मतलब क्या, सिक्रेशन ही होता है. वो ब्रोंको चोकिंग होता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ जाता है, वो पेशाब कर देता है, वो लेटरिन कर देता है. नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑन आईज? सो इट विल कॉज meiosis. So it will constrict the pupil and acetylcholine will constrict the pupil, cause meiosis and reduction in the intraocular tension. अभी देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, एसिटिलकोलिन क्या करता है कि कंस्ट्रिक्शन करता है पिपिल का, मायोसिस करता है. एड्रेनालिन क्या करता है, मायोसिस करता है एसिटिलकोलिन एंड इट विल रिड्यूस द इंट्राओक्युलर टेंशन. अभी देखो इंट्राओक्युलर टेंशन ये कम करेगा, इट रिड्यूसेस द रिडक्शन इन द इंट्राओक्युलर टेंशन. इंट्राओक्युलर टेंशन ये एसिटिलकोलिन कम करता है. तो क्या होता है कि ग्लाउकोमा इज द वन कंडीशन वेयर देयर इज इंक्रीज इन द इंट्राओक्युलर टेंशन. ओके, ग्लाउकोमा में क्या होता है कि इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है. नाउ इंट्राओक्युलर प्रेशर क्यों बढ़ता है? देयर आर टू रीजंस फॉर दैट. सो फर्स्ट इज एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ एक्वियस ह्यूमर, दैट इज द फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन इज अ ब्लॉकेज ऑफ आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर, दैट इज द सेकंड रीजन. तो ये दो रीजन की वजह से इंट्राओक्युलर टेंशन बढ़ता है. नाउ एसिटिलकोलिन क्या करता है, उसको कम करता है. तो दैट्स व्हाई ऑल द कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ओके, कोलिनर्जिक ड्रग्स, दे आर यूजफुल इन द ग्लाउकोमा. रिमेंबर, दे आर यूजफुल इन द ग्लाउकोमा. ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल रिजल्टिंग इनटू फिक्सेशन ऑफ विजन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. जैसे आप एड्रेनालिन होता है आपका, एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन. सो व्हेन यू आर अंडर influence of sympathetic nervous system, so you are able to see the object which are from far distance. कि आपको भागना है तो रास्ता भी दिखना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए आपको विजन दूर दृष्टि दिखती है, दूर का विजन दिखता है. when you are under the influence of cholinergic system, so your vision is fixed for near distance. So contraction of ciliary muscle and resulting into fixation of vision for short distance, which is known as spasm of accommodation. Now what is the action of acetylcholine on autonomic ganglia? So stimulation of autonomic ganglia releases the acetylcholine. Adrenaline, stimulation of adrenal medulla release the adrenaline, which increases the blood pressure. Now these actions can be blocked by ganglionic blocker, for example exomethonium. तो autonomic ganglia के ऊपर acetylcholine का क्या action है? It stimulate the autonomic ganglia to release again acetylcholine, adrenaline. Okay, and stimulation of adrenal medulla to release the adrenaline again, which increases the blood pressure. Now this action can be blocked by exomethonium. So that's why ganglionic blockers are also useful in the antihypertensive, as an antihypertensive में आपको एक क्लास से भी मिलेगा, ganglionic blockers. क्यों होता है ये रीजन क्या है इसके. Now what is the action of acetylcholine on neuromuscular junction? Initially in a small doses, acetylcholine induces the contraction. In large doses, it causes the paralysis because of the persistent depolarization. So neuromuscular junction मतलब skeletal muscle के ऊपर क्या एक्शन है? skeletal जो मसल है उसके ऊपर क्या एक्शन है? contraction. Okay, in a small doses, if dose is increased, then acetylcholine causes paralysis of muscle due to persistent depolarization. This action can be blocked by D-tuberculin. Okay, so acetylcholine causes it causes the spasticity of muscle. तो मसल का स्पास्टिसिटी होगा. इलास्टिसिटी मतलब क्या? मसल स्ट्रेच होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. स्पास्टिसिटी मतलब क्या? एक बार स्पास्टिसिटी मतलब लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. जो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो उसका इलास्टिसिटी लॉस होना, उसको बोलते हैं स्पास्टिसिटी. सो एसिटिलकोलिन इन हायर डोसेज कॉजेज स्पास्टिसिटी और पैरालिसिस, ओके, ड्यू टू परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन. बिकॉज दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है? निकोटिनिक NM रिसेप्टर होता है, विच इज अ आयन चैन. सो डीपोलराइजेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन मतलब डीपोलराइजेशन होते रहेगा कंटिन्यूसली, रिपोलराइजेशन हो ही नहीं रहा, डीपोलराइजेशन होता है, उसको बोलेंगे पैरालिसिस. ओके, सो इट कॉजेज द पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल if used in a higher doses. In a small dosage, it causes the contraction. Okay? And this action can be blocked by D-tuberculin. Now, what are the therapeutic uses of acetylcholine? So it is not effective orally. It is ineffective orally
because of its transient action it cannot be used for the therapeutic purpose. Its substitute are available. It synthetic derivative एसिटिलकोलिन के synthetic derivative जो है मिथाकोलिन, कार्बियाकोल, बिथेनेकोल वो यूज कर सकते हैं because they are relatively resistant to the hydrolysis. These substitutes are used in the Alzheimer's disease and Huntington's disease. Therapeutic use of acetylcholine and its congeners is synthetic derivative. They are useful in the Alzheimer's disease and Huntington disease. Now, what do you mean by Alzheimer's disease? So, Alzheimer's disease में क्या होता है कि there is a destruction of enzyme activity, choline acetyl transferase. तो उसमें क्या होता है अल्जाइमर्स में एसिटिलकोलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है क्योंकि जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस के लिए एसिटिलकोलिन का दैट इज कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज उसका डेफिशिएंसी है। तो उसका डेफिशिएंसी होने की वजह से एसिटिलकोलिन नहीं बन पाता और एसिटिलकोलिन नहीं बन पाता तो एसिटिलकोलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है एंड दैट लीड्स टू अल्जाइमर्स मतलब भूलने की बीमारी। यू माइट हैव सीन वन मूवी, आपने एक मूवी देखा होगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें जो एक्टर होता है विक्की कौशल उसकी जो मम्मी होती है उन मम्मी को उसके मम्मी को अल्जाइमर्स होते हैं, अल्जाइमर डिसीज वो भूलने की बीमारी, ठीक है, वो भूल जाती है फिर। तो अल्जाइमर डिसीज नथिंग बट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एसिटिलकोलिन। हंटिंगटन डिसीज इज अ सीवियर डिजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो बहुत ज़्यादा कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो उसके बाद में हंटिंगटन डिसीज होता है। सो डिमेंशिया इज रिलेटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ एसिटिलकोलिन। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया इज रिलेटेड विद द एसिटिलकोलिन डेफिशिएंसी। जिसमें एसिटिलकोलिन का डेफिशिएंसी होगा तो वो भूल जाएगा। जैसे होता है एल्डरली पेशेंट जो बहुत 80-90 साल के बूढ़े होते हैं या 60 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है 60 साल के ऊपर के लोग जो होते हैं उनमें एसिटिलकोलिन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। 60 साल के जो एज के जो पेशेंट होते हैं या फिर जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि भूलने की बीमारी होती है उनको। तो आपने यहाँ पे एक कहावत भी होती है उसके लिए, सटिया गया बूढ़ा सटिया गया। सटिया गया मतलब क्या, उसका एज 60 के ऊपर हो गया और उसको भूलना चालू हो गया, वो बोलते जाता है अरे यार मुझे याद नहीं, मतलब वो होता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एसिटिलकोलिन। सो दीज आर द थेरापेटिक यूजेस ऑफ एसिटिलकोलिन। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सिंथेटिक कोलिनेस्टरेस ड्रग, सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एसिटिलकोलिन कि एसिटिलकोलिन जो है एज इट इज़ आप नहीं दे सकते, ओरली तो नहीं दे सकते, इंजेक्टिबली भी देंगे तो उसका मेटाबॉलाइज होता है, थोड़ा सा ही पार्ट रीच होता है। सो इट्स एक्शन इज अ वेरी ट्रांजिएंट। सो दैट्स व्हाई सिंथेटिक कोलिन ईस्टर्स ड्रग, सिंथेटिक कोलिन ईस्टर्स। सो व्हाट आर दिस? फर्स्ट वन इज अ मिथाकोलिन। सो इट इज ओरली इफेक्टिव एंड 1/3 ससेप्टिबिलिटी टू कोलिन ईस्टरेज। मतलब ये ज़्यादा मेटाबॉलाइज नहीं होता है कोलिन ईस्टरेज से, लेकिन होता है as compared to acetylcholine. It is a totally resistant to pseudocholinesterase. This drug is now rarely used. It is not used nowadays. Next one is a carbachol. This carbachol is resistant to both true as well as pseudocholinesterase. This was question in GPAT 2020. So carbachol is a resistant. It will raise the metabolism by true as well as pseudocholinesterase. So both जो enzyme metabolizing enzyme है, so those two enzymes responsible for the metabolism of acetylcholine. So this synthetic derivative carbachol is a resistant to both true as well as pseudocholinesterase. Now it acts on the muscarinic receptor on the smooth muscle of GIT, urinary bladder. It has a sustained meiosis effect when used topically. So this drug has a potential application in glaucoma. Muscarinic actions of carbachol are not adequately blocked by atropine. So this carbachol has a application in the glaucoma. Now this muscarinic action are not blocked by एट्रोपिन, इट्स मस्करिनिक एक्शन। एसिटिलकोलिन का ब्लॉक करता है एट्रोपिन, लेकिन कार्बाकोल का नहीं ब्लॉक। नेक्स्ट वन इज बिथेनोकोल। इट इज आल्सो रेजिस्टेंट टू बोथ ट्रू एज वेल एज pseudocholinesterase and it has mainly muscarinic action. It is a little bit specific and negligible cardiovascular effect. Muscarinic effect can be antagonized by atropine. Now it should be never administered by IV intravenous because of its toxicity. Atropine is used in the condition. अगर बिथेनोकोल का या फिर कोई भी कोलिन इसका है कोलिनेस्टरेज जो है उनका टॉक्सिक हो गया था एट्रोपिन दे दे, लेकिन कार्बाकोल का है सो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोलिनेस्टर्स, सिंथेटिक कोलिनेस्टर्स? उसका एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा? इट इज़ ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है,
तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की एक्सटेंशन की वजह से सो माइनर साइड इफेक्ट लाइक जीआईटी डिस्टर्बेंसेस। जीआईटी डिस्टर्बेंस मतलब क्या, डायरिया हो जाएगा, फ्लशिंग, सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, ब्रैडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, सीरियस एडवर्स इफेक्ट लाइक हाइपोटेंशन, सिंकोप, ब्रोंकोस्पाज्म एंड ओकेजनली कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अरेस्ट। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट। सो दीज आर द सिंथेटिक कोलिन ईस्टर ड्रग। एसिटिलकोलिन जो है उसका एनालॉग है, ये उसके जैसे ही ड्रग है। एसिटिलकोलिन जो है बस नेचुरल है, और ये मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनाकोल, दे आर द सिंथेटिक वंस। ओके, आउट ऑफ दैट कार्बाकोल इज रेजिस्टेंट टू बोथ। ये क्वेश्चन जीपीआर 2020 में आया था। और नेक्स्ट वन इज थेरापेटिक यूजेस ऑफ एसिटिलकोलिन एंड कोलिन ईस्टर्स। जो सिंथेटिक कोलिन ईस्टर्स होते हैं, मिथेनाकोल, कार्बाकोल, बिथेनाकोल, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनाकोल, तो उसका यूजेस क्या है? जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। उसके ऊपर देखो, बिथेनाकोल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस एंड एब्डोमिनल डिस्टेंस। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस मतलब क्या होता है मैं बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई जीआईटी में कोई सर्जरी हो गया, जैसे आपका इंटेस्टिन का सर्जरी हो गया, तो बिकॉज ऑफ दैट सर्जरी होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो स्मूथ मसल है आपका, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म होता है बिकॉज ऑफ द इनर्वेशन ऑफ दिस कोलिनर्जिक नर्व, तो वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाता। सो दैट इज नोन एज अ पैरालिटिक इलियस और पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक। टू एक्टिवेट दैट पैरालाइज्ड मसल, this bithanacol is used. So bithanacol is used in the post-operative paralytic ileus abdominal distension मतलब पेट फूलना, abdominal distension मतलब पेट फूलना, ड्यू टू सर्जरी हो गया तो पेट आपका फूला है, कम नहीं हो रहा है, सो abdominal distension, bithanacol is used in the post-operative paralytic ileus abdominal distension due to surgery. To relieve the gastric atony in case of gastric atony मतलब गैस्ट्रिक मसल आपके कॉन्टैक्ट में हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक अटोनी। एंड यूरिनरी रिटेंशन, अगर आपको यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हो, सो इन दैट केस आल्सो बिथेनाकोल इज यूज्ड। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दीज कोलिन ईस्टर्स, सिंथेटिक कोलिन ईस्टर, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लेकिन क्यों, देखो आप यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रोंकियल अस्थमा में क्या हो रहा है कि आपका जो ब्रोंकियस है वो नैरो हो गया है, ठीक है, और फिर ऊपर से आप एसिटिलकोलिन का डेरिवेटिव देंगे मिथाकोलिन, तो वो और भी ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे, सो दैट विल इंक्रीज द सिम्टम्स, दैट विल एग्रीवेट और दैट विल एक्सरबेट द अस्थमा। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर ऑल्सो, जैसे बिथेनाकोल देंगे तो बिथेनाकोल क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड का रिलीज करेगा ना, ऑलरेडी आपको अल्सर है, सो दैट्स व्हाई। ओके, सो दीज ड्रग आर मेनली यूज्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैस्ट्रिक अटोनी, यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड्स, ठीक है, कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड्स कौन है? कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड्स, फर्स्ट वन इज पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिलोकार्पस जबरोंडी and it directly stimulates the muscarinic as well as nicotinic receptor. Muscarinic action are antagonized by atropine. Pilocarpine when used to produce the hypertension and tachycardia. Symptoms of sympathetic ganglia, particularly in the spinal animal, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें, तो पिलोकार्पिन जब यूज करेंगे तो वो कभी कभी हाइपरटेंशन भी करता है, टैकीकार्डिया भी करता है। व्हेन दिस पिलोकार्पिन इज अप्लाइड टॉपिकली इन द आईज, इट प्रोड्यूसेस मायोसिस, transient increase and sudden fall in the intraocular tension and spasm of accommodation। मतलब क्या, ये क्या करेगा, मायोसिस करेगा, डोज देने के बाद इमीडिएटली वो इंट्राओकुलर टेंशन इंक्रीज करता है और बाद में फिर से सस्टेन्ड तरीके से डिक्रीज करता है। ओके, सो दिस इज यूज्ड इन द ग्लाउकोमा। एडवर्स रिएक्शन देखो उसके, सो लाइक एज कोलिन ईस्टर्स, pulmonary edema is the major side effect of pilocarpine. Then what is the therapeutic uses? In combination with the physostigmine, it is used in the treatment of acute congestive glaucoma। ठीक है, ग्लाउकोमा में जहाँ पे इंट्राओकुलर टेंशन बढ़ जाता है उसमें ये यूज़ करेंगे। सो इट इज़ यूज्ड इन द acute congestive glaucoma to decrease the intraocular pressure or tension. It is also
इट इज़ टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज़, उसको सिस्टमिक यूज़ के लिए नहीं, मतलब उसका इंजेक्शन वगैरह नहीं ले सकते आप, सिस्टमिक यूज़ के लिए टॉक्सिक है। सो इट हैज़ ओनली टॉपिकल यूज़ फॉर द ग्लाउकोमा, पिलोकार्पिन, याद रखो। कोई सिस्टमिक मस्कैरिन एंड एरेकोलिन, अनदर इज अ मस्कैरिन एंड एरेकोलिन। सो मस्कैरिन इज अल्कोलॉइड फ्रॉम मशरूम, पॉइजनस मशरूम होता है एक, अमानिटा मस्कैरिया, अमानिटा मस्कैरिया नाम का एक पॉइजनस मशरूम होता है, उसमें ये अल्कोलॉइड होता है मस्कैरिन, एंड पॉइजनिंग ऑफ दिस अल्कोलॉइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया, डिसअपनिया, एब्डोमिनल पेन, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, वीकनेस, कंफ्यूजन, कन्वल्जन एंड कोमा। मशरूम है, मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है, अमानिटा मस्कैरिया, इसका अगर पॉइजनिंग हुआ तो क्या होगा आपको, डायरिया होगा या डिसअपनिया, डिसअपनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत, एब्डोमिनल पेन, लैक्रिमेशन मतलब आप रोते रहोगे, सलाइवेशन, वीकनेस, कंफ्यूजन, कन्वल्जन एंड कोमा। ऑल दीज आर एक्शंस सिमिलर टू एसिटिलकोलिन, ठीक है। डायरिया, तो एसिटिलकोलिन क्या करेगा, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करता है, तो ये भी जो मस्कैरिन है वो भी क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करता है। डिसअपनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत, एसिटिलकोलिन भी वही करेगा। एब्डोमिनल पेन ड्यू टू एक्सेसिव एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, इंक्रीज्ड सेक्रेशंस, कन्वल्जन्स, कोमा, डेथ। एरेकोलिन, एरेकोलिन इज अनदर अल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम एरेका नट, ओके, बीटल नट जो होता है आपका सुपारी, तो उसमें जो सुपारी है, सुपारी इज नथिंग बट द एरेका नट। इट हैज़ अ कोलिनोमाइमेटिक एक्शन बट इट हैज़ नो थेरेपेटिक यूजेस इन द ह्यूमन, बोथ, उनका कोई यूज़ नहीं है, बस आपको समझने के लिए। जैसे आप देखो, आप पान सुपारी खाते हो, सुपारी खाते हो, क्यों खाते हो सुपारी, क्यों, आप खाना खाया पूरा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर ऊपर से सुपारी खाते हो, क्यों, जब सुपारी आप मुंह में रखते हो तो ये एरेकोलिन उसमें का वो क्या करता है, जो सिक्रेशंस होते हैं आपके, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस या फिर सलाइवरी सिक्रेशंस, उसको बढ़ा देता है, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ाया मतलब वो डाइजेस्ट होगा आपका फूड। दैट्स वाई एरेकोलिन इज अ अल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम एरेका नट व्हिच इज अ ClO, or it is a cholinomymetic alcohol. Now we'll see the next point. Okay. Now suppose this is your enzyme known as a cholinesterase. ठीक है, cholinesterase नाम का एंजाइम होता है, ये वाला एंजाइम जो है वो cholinesterase है, ये ब्लू कलर वाला cholinesterase एंजाइम, ठीक है। उसमें दो साइट्स होता है, स्टेरेटिक साइट, ओके, एंड अनायोनिक साइट। कितने साइट होता है, दो साइट, एनायोनिक साइट एंड स्टेरेटिक साइट। ये एंजाइम है, सॉरी मस्कर्निक रिसेप्टर, ठीक है, मस्कर्निक रिसेप्टर नहीं, और या फिर एंजाइम भी बोल सकते हो उसको, रिसेप्टर एंजाइम। तो उसमें दो साइट होता है, स्टेरेटिक साइट एंड एनायोनिक साइट। अभी ये जो है एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल है, क्या है ये, एसिटिलकोलिन, ठीक है, एसिटिलकोलिन का स्ट्रक्चर है। सो एसिटिलकोलिन इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर और विल इंटरेक्ट विद द एंजाइम बाय टू मैकेनिज्म। नाउ सी, ये जो है मिथॉक्सी ग्रुप, ईस्टर, ये ईस्टर है ना, ये CH3COO ईस्टर, सो इट विल इंटरेक्ट विद द एंजाइम और रिसेप्टर एट द स्टेरेटिक साइट। नाउ दिस इज नोन एज अ ट्राइमिथाइल अमोनियम, ओके, ट्राइमिथाइल अमोनियम। सो दिस विल इंटरेक्ट विद द anionic site of the receptor as well as enzyme. Now this methylene bridge is there. This methylene bridge will interact with the receptor or enzyme by hydrophobic forces, van der Waals forces. Okay. So ester group, alkylamine chain and cationic head. So these three are the structural feature of acetylcholine molecule. Ester group, alkylamine chain and cationic head. ठीक है, ईस्टर ग्रुप कौन सा है, ये वाला, दिस वन इज अ ईस्टर ग्रुप। अल्कामाइन चेन कौन सा है, अल्काइल अमाइन चेन, ये बीच में वाला CH2, दिस इज अल्कामाइन चेन। कैटानिक हेड कौन सा है, ये वाला। कैटानिक हेड ऑफ एसिटिलकोलिन विल इंटरेक्ट विद द एनायोनिक साइट प्रेजेंट ऑन द रिसेप्टर और एंजाइम, देन स्टेरेटिक ग्रुप विल इंटरेक्ट विद द स्टेरेटिक साइट प्रेजेंट इन द रिसेप्टर और एंजाइम। इसको आप रिसेप्टर भी बोलो या फिर एंजाइम भी बोल सकते। देयर आर, मान लीजिए कि ये एंजाइम है, ठीक है, तो एंजाइम है और एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ में ऐसे कंबाइन होता है। मान लीजिए कि एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम, वो ये ऐसे इंटरेक्शन होता है उनका, ऐसा हाइड्रोलाइसिस करेगा ये। नाउ वी आर हैविंग एंटी कोलिन ईस्टरेज ड्रग्स, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंटी कोलिन ईस्टरेज ड्रग है। तो वो ड्रग क्या करेंगे, ये जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे, एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग, ठीक है, उसको इनहिबिट करेंगे, ओके, बाय बाइंडिंग विद द डिफरेंट साइट। जैसे रिवर्सिबल जो है,
रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज जो होता है वो एसिटिल कोलिन की जगह वो यहाँ पे आएगा और बाइंड होके यहाँ उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। और एज दे आर रिवर्सिबल, द बाइंडिंग ऑफ दैट रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज ड्रग एंड एंजाइम इज डिटैचेबल, वो डिटैच होते हैं बाद में, मतलब डिटैच होते हैं, कोवैलेंट बाइंड नहीं करते। बट इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एंटीकोलिनिस्टरेज लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स, okay, organophosphate and carbamate, they binds to the enzyme irreversibly at the same site, जैसे anionic site और cationic site। but organophosphate जो compound होता है, they organophosphate जैसे pesticide होता है, so they only binds to anionic sites। pesticide जो होते हैं they only binds to anionic site of the enzyme cholinesterase। but जो कार्बामेट होता है, कार्बामेट डेरिवेटिव जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटिल कोलिनिस्टरेज कार्बामेट डेरिवेटिव होता है, वो दोनों साइड को बाइंड करता है, इसको भी और इसको भी और एनानिक साइड को और दिस एनानिक एंड स्टेरेटिक साइड। कार्बामेट विल बाइंड टू बोथ साइड, ठीक है। एंड जो पेस्टिसाइड होता है वो सिर्फ एक ही साइड को बाइंड करता है। इतना याद रखो, बाद में ये कंसेप्ट जब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंड कार्बामेट पॉइजनिंग आएगा आपको, उस टाइम पे ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, cholinesterase inhibitors। Now cholinesterase inhibitors, they are classified into two types. First one is the reversible cholinesterase inhibitor and second one is the irreversible cholinesterase inhibitor। रिवर्सिबल में आता है फर्दर नेचुरल वन इज फाइसोस्टिग्माइन, सिंथेटिक कौन सा है, नियोस्टिग्माइन, पिरिडोस्टिग्माइन, अम्बोनियम, एंड्रोफोनियम, रिवास्टिग्माइन, डोपेनिजिल, गैलेंटामाइन एंड डिमाक्यूरियम, टेकेरिन, ऑल दीज आर द रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कौन सा याद रखो, नेचुरल कौन सा है, फाइसोस्टिग्माइन, सिंथेटिक कौन सा है, नियोस्टिग्माइन, पिरिडोस्टिग्माइन, अम्बोनियम, एंड्रोफोनियम, रिवास्टिग्माइन, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन एंड डिमाक्यूरियम एंड टेकेरिन। टेकेरिन इज एक्रेडिन डेरिवेटिव। इरिवर्सिबल में कौन सा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड लाइक डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट डीएफपी, ऑक्टोमिथाइल पायरोफॉस्फेटरामाइड एंड अदर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। इसमें इरिवर्सिबल में भी दो टाइप का आता है, आपने देखा है, एक आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड एक आता है कार्बामेट्स। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। सो एसिटिलकोलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय कोलिनेस्टरेज एंजाइम। एसिटिलकोलिन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, हाइड्रोलिसिस कौन करता है, कोलिनेस्टरेज, बाय कंबाइनिंग विद द एनानिक साइट, ठीक है, एनानिक साइट। उसमें एंजाइम के ऊपर दो साइट होता है, एनानिक साइट एंड केटोनिक साइट, सॉरी एनानिक साइट एंड स्टेरेटिक साइट। So by combining with the anionic site bearing a charge which attract quaternary ammonium, quaternary ammonium जो है ट्राइमिथाइल अमोनियम, वो बाइंड करता है एनायनिक साइट। जो क्वाटरनरी नाइट्रोजन जो है ट्राइमिथाइल ग्रुप जो है, ट्राइमिथाइल अमोनिया ग्रुप जो है एसिटिलकोलिन का, वो एनायनिक साइट के ऊपर बाइंड करता है। और जो ईस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप और एसिड ग्रुप होता है, वो स्टेरेटिक साइट के ऊपर बाइंड करता है, बाइंड टू द एंजाइम। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज क्या करते हैं, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज दे विल हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसी काइंड का स्ट्रक्चर उनका होगा, किसका, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज हैज स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू एसिटिलकोलिन एंड देयरफॉर दे आर कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद द बोथ साइड ऑफ एसिटिलकोलिन एस्टरेज। जो एंजाइम है एसिटिलकोलिनेस्टरेज और कोलिनेस्टरेज एंजाइम, सो reversible anticholinesterase they have capacity to bind to the both side because they have structural similarity। उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एसिटिलकोलिन की जैसे, वो दोनों साइड के ऊपर बाइंड करते हैं। एंड ओके दिस कॉम्प्लेक्स, ओके नाउ कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज एट स्टेरेटिक साइट। ओके स्टेरेटिक साइट के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट कॉम्प्लेक्स नॉट रेडिली हाइड्रोलाइज, दैट कॉम्प्लेक्स इज नॉट रेडिली हाइड्रोलाइज देन एसिटिल स्टेरेटिक साइट कॉम्प्लेक्स। This process that result in the temporary inhibition of enzyme, okay, temporary inhibition। जैसे रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज जो होता है वो दोनों साइड को बाइंड करता है, एनायनिक साइड को और स्टेरेटिक साइड को। तो एनायनिक साइड भूल जाओ, स्टेरेटिक साइड जो है वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हो रहा है वो थोड़ा सा कुछ देर तक रहता है, मतलब इट इज़ नॉट रेडिली हाइड्रोलाइज, इमीडिएटली उसको हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, कुछ देर तक रहता है। So this causes temporary inhibition of that cholinesterase enzyme that leads to increase in the acetylcholine level. In contrast to other reversible anticholinesterase, एंड्रोफोनियम जो है, एंड्रोफोनियम forms a reversible complex with that
एनोनिक साइट एंड दैट्स वाई इट हैज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. एंट्रोफोनी में उसका ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट है, एंड दैट्स वाई एंट्रोफोनियम इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. क्यों करते हैं, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स जो बनता है एंजाइम के साथ में वो जल्दी ही डिसोसिएट हो जाता है, और बाकी के रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरी वो थोड़ी देर तक रहता है. तो दे हैव लॉन्ग ड्यूरेशन एंड एंट्रोफोनियम हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन. दैट्स व्हाई एंट्रोफोनियम इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. दिस वाज अ रिवर्सिबल एंटीकोलिन. नाउ कम्स टू द इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरीज. तो इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरीज क्या रहेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड एंड कार्बामेट्स. So irreversible anticholinesterase like organophosphorus compound, they only binds at the stereotic site. They only binds at the stereotic site. जो COOH जो site है वहाँ पे ही bind करेंगे of the cholinesterase. Consequently, the site is phosphorylated, and it is the hydrolysis of this phosphorylated site is slow and in certain cases does not occur, and that's why organophosphorus compounds they are known as irreversible inhibitor of cholinesterase. क्यों, वो सिर्फ स्टैटिक साइट के ऊपर ही जाके कंबाइन करते हैं और वहाँ पे वो साइट का फॉस्फोरिलेशन होता है. साइट मतलब क्या होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है. सो दैट इज फॉस्फोरिलेटेड एंड द हाइड्रोलिसिस विल नॉट ऑकर. दैट्स व्हाई इट इज अ irreversible inhibitor, and this produces almost irreversible inhibition of cholinesterase. Okay, amongst the organophosphorus compound, जो बाकी कंपाउंड है amongst the organophosphorus compound, ecothiophate forms a complex with both sides and is more potent. Ecothiophate, it's a organophosphorus, so it forms a complex with the enzyme which is a irreversible, and it forms a complex with both sides. Now reversible anticholinesterase individual reversible anticholinesterase. First one is a physostigmine, which is also known as a iserine. ठीक है, alkaloid from Phytosigma species, has a similar effect like a parasympathetic inhibitor. जैसे एसिटिलकोलिन का एक्शन है उसकी वजह से उसके एक्शन रहेंगे. टॉपिकल इंस्टॉलेशन इनटू आइज, तो ये जो है physostigmine टॉपिकली जब आइज में डालेंगे इट कॉजेस मायोसिस, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन and decrease in the intraocular tension. Okay, apart from its use in the eye, it is relatively safe in the treatment of atropine intoxication. अगर atropine का poisoning हो गया तो specific antidote क्या है, physostigmine. So specific antidote for atropine poisoning, remember physostigmine. It is also specific antidote for phenothiazine tricyclic antidepressant poisoning. So remember ये बहुत ही important. Physostigmine is a specific antidote for atropine poisoning, specific antidote for phenothiazine poisoning, specific antidote for tricyclic antidepressant poisoning or overdose. Now next one is a neostigmine, reversible anticholinesterase. Synthetic quaternary ammonium compound inhibit both cholinesterase pseudo as well as true cholinesterase. In addition, it stimulates the organ innervated by cholinergic stimuli. बाकी जो एक्शंस है सिमिलर टू एस्ट्रोजन. नाउ एक्शन ऑन GIT. GIT के ऊपर क्या है, it increases the tone and motility of small intestine and increases the production of gastric juice and increases the peristalsis. Now skeletal muscle के ऊपर क्या एक्शन है देखो, it increases the strength of muscle in the patient with myasthenia gravis. myasthenia gravis क्या होता है, myasthenia gravis एक डिसीज है जिसमें क्या होता है कि मसल का स्ट्रेंथ लॉस हो जाए myasthenia gravis में. So skeletal muscle it increases the strength in the patient with myasthenia gravis by anticholinesterase activity. कौन, ये neostigmine. It directly stimulating the cholineceptive receptor. ये acetylcholine का receptor जो है उसको stimulate करके ये strength increase करता है मसल का. What is action on cardiovascular system? It reduces the heart rate, blood pressure by vasodilation, and it causes the bradycardia. It acts on various secretory glands and increases the secretion. जैसे एसिटिलकोलिन सिक्रेशन इंक्रीज करता है वैसे ही नियोस्टिग्माइन physostigmine क्या करेगा, सिक्रेशन इंक्रीज करेगा. इट कैन कॉज ब्रोंकोस्पाज्म. देन डिजिस्टिग्माइन इज अनदर एनालॉग विच इज लॉन्गर एक्टिंग देन नियोस्टिग्माइन. नियोस्टिग्माइन का ही एक दूसरा सिंथेटिक भाई है डिजिस्टिग्माइन विच इज लॉन्गर एक्टिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज अ pyridostigmine. It has a similar action to neostigmine but slightly longer acting. Okay, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है नियोस्टिग्माइन से एंड लेस पोटेंट है.
Then next one is ammonium. Ammonium is a bisymmetrical synthetic quaternary ammonium compound, more potent than neostigmine. Next one is a dimercurium. Two neostigmine molecules joined together by 10-methoxy group. ये याद रखो dimercurium. Two neostigmine molecules joined together by 10-methoxy group, and it inhibit both true as well as inhibit true cholinesterase more specifically than pseudocholinesterase, and it is a potent mitotic when used in the eye. Now entrophonium, structurally similar to neostigmine but has a weak anticholinesterase activity. It enhances the neuromuscular transmission with a low dose and is having very low effect on the smooth muscle of myocardium. And it is used in the diagnosis of myasthenia gravis. माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में इसको यूज़ करेंगे. उसको एंड्रोफोनियम इज ए शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस. याद रखो, शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? एक डिसीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो मसल्स पे वीकनेस ऑफ मसल, जो मसल है स्केलेटल मसल्स हो गए, उसका वीकनेस होता है और उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहता. एडवर्स रिएक्शंस ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस, दे आर मोस्टली ड्यू टू एंटी मस्कनिक इफेक्ट. इनका एंटी मस्कनिक इफेक्ट है इसलिए. तो इपिगैस्ट्रिक पेन, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, पैरास्थेशिया, सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नजल एब्डोमिनल क्रैम्प, नोशिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, फैसिकुलेशंस. ओके, फैसिकुलेशन अराउंड द माउथ, मतलब फैसिकुलेशन मतलब unwanted contraction of muscles. यूज ऑफ दिस ड्रग्स, ये ड्रग्स का यूज़ क्या रहेगा? न्यूस्टिकमीन, पिरिडोस्टिकमीन, अम्बोनियम, इनका रिवास्टिकमीन, इनका यूज़ क्या रहेगा? सो दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस एंड मे कॉज कोलिनर्जिक क्राइसिस, दैट इज अ पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल बिकॉज ऑफ द persistent depolarization. So याद रखो, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस and they are also used in the treatment of glaucoma. ग्लाउकोमा में यूज़ करेंगे उनका, माइस्थेनिया ग्रेविस में भी यूज़ करें. ओके, ग्लाउकोमा में टॉपिकली यूज़ करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस में उसका इंजेक्शन देते हैं. रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस. नाउ विल सी द इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस. इरिवर्सिबल वाले ठीक है, फिर से एक बार देखो. थेरापेटिक यूजेस ऑफ कोलिनेस्टेरेस, थेरापेटिक यूजेस ऑफ रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स. सो फर्स्ट वन इज ग्लाउकोमा. सो फाइजोस्टिकमाइन, then dimercurium is used in the glaucoma to decrease the intraocular pressure. Decurarization मतलब क्या? क्यूररे अल्कोलॉइड्स अगर आप लोग को दिया है एंड उसने अगर क्यूररे अल्कोलॉइड्स दिया है आपको टू ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, टू कॉज द टू रिलीव द स्पास्टिसिटी. क्यूररे अल्कोलॉइड्स जल्दी डिटेच नहीं होते. टू decurarization they are useful. तो फॉलोइंग यूज ऑफ डी-ट्यूबरक्युलिन इन एनेस्थेटिक प्रोसीजर. डी-ट्यूबरक्युलिन क्या है? इट इज़ अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में उसको देते हैं टू अचीव एडिक्वेट स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, तो वो जल्दी डिटेच नहीं होता. तो फॉर द डीक्यूरराइजेशन दिस ड्रग आर आल्सो यूज्ड. देन दिस ड्रग आर आल्सो यूज्ड इन द माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एटोनॉमिक ऑटोइम्यून डिसीज है विच कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ पोस्ट साइनोटिक न्यूरोमस्कुलर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. तो क्या होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसमें जो एसिटिलकोलिन रिलीज होगा और वो उसके रिसेप्टर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो वो क्या कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे एंटीबॉडी तैयार होती है, एंटीजन तैयार होता है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और वो जो एंजाइम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एसिटिलकोलिन जब भी रिलीज होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. सो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर दैट आर इन्वॉल्व इन द मसल दे आर रिड्यूस्ड अप टू 70-90% इन द माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इजी फटिगेबिलिटी, उसको जल्दी थकावट आएगी. प्रोग्रेसिव वीकनेस हैव स्ट्रेटेड मसल विद द इंटरमिटेंट पीरियड ऑफ एक्सर्बेशन. जो मसल है, मसल मास है, उसका वीकनेस होता है. अनदर माइस्थेनिक सिंड्रोम, लैम्बार्ट-स्टोन सिंड्रोम. अनदर माइस्थेनिक सिंड्रोम, माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे ही ये माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे ही एक सिंड्रोम होता है, लैम्बार्ट-स्टोन सिंड्रोम. इट इज ऑटोइम्यून in nature and occurs in association with the small cell carcinoma of lung. The antibodies are directed to calcium channel of the nerve terminals with resultant diminution of acetylcholine.
मतलब यहाँ पे एसिटिलकोलिन होता भी है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, या फिर पूरा वो एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर जो है वो डैमेज हो चुका है, डीजनरेट होता है। नाउ एंड्रोफोनियम इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस। इट इज नोन एज अमेलियोरेटिव टेस्ट। ठीक है, अमेलियोरेटिव टेस्ट। एंड्रोफोनियम इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस। तो मास्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस करना है आपको, तो क्या होता है, उसको एक एंड्रोफोनियम का इंजेक्शन देते हैं। तो एंड्रोफोनियम का इंजेक्शन देने के बाद उसका जो मसल जो वीक होता है मास्थेनिया ग्रेविस में, उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। और एंड्रोफोनियम क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, तो कुछ टाइम के लिए उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है मसल में, और बाद में फिर से स्ट्रेंथ गायब हो जाता है। तो यू कैन कन्फर्म दैट द पेशेंट इज हैविंग मास्थेनिया ग्रेविस। सो एंड्रोफोनियम इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस व्हिच इज नोन एज अमेलियोरेटिव टेस्ट। Then another drug is there known as D-tuberculin. D-tuberculin is also used in the diagnosis of Myasthenia gravis. D-tuberculin is also used in the diagnosis of Myasthenia gravis, and the test based upon the use of D-tuberculin is known as a provocative test. Ameliorative test and provocative test. There are two tests. याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। So use of Myasthenia gravis, diagnosis of Myasthenia gravis using एंड्रोफोनियम is known as a ameliorative test. Okay, ameliorative test. And then use of D-tuberculin for diagnosis of Myasthenia gravis is known as a provocative test. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ anti-NR antibodies in the plasma muscle biopsy specimen are the more reliable test for the diagnosis of Myasthenia gravis. तो मतलब anti-acetylcholine antibodies, then plasma muscle biopsy specimen is more specific test for diagnosis of Myasthenia gravis. In further treatment with neostigmine, तो Myasthenia gravis का ट्रीटमेंट क्या है? Treatment with neostigmine which has a short duration of action, tolerance, waxing and waning of muscle strength is adverse effect. Waxing, waning of muscle is an adverse effect of neostigmine. So drug with long action and less side effect like pyridostigmine, ammonium, they are used in the combination with glucocorticoids for the treatment of Myasthenia gravis. तो Myasthenia gravis के ट्रीटमेंट के लिए क्या है? नियोस्टिग्मीन, अम्बोनियम, पिरिडोस्टिग्मीन ये यूज़ करते हैं। नियोस्टिग्मीन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, और उससे भी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है एंड्रोफोनियम का। मेनी ड्रग एज साइड इफेक्ट ऑफ एग्रीवेटिंग सिम्टम ऑफ Myasthenia gravis। कुछ जो ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स वो Myasthenia gravis आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके एग्जांपल क्या है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर क्या एक्शन है उसके नियोस्टिग्मीन के? नियोस्टिग्मीन एंड बेंजपिरिमिडिन यूज्ड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन। देन स्नेक वेनम पॉइजनिंग, ठीक है, अगर आपको सांप ने काट लिया तो उसमें भी यूज है। एंटी कोलिनिस्टरेज आर यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एशियन कोबरा। अगर कोबरा ने आपको बाइट कर दिया तो उसमें भी उसका यूज है। ओके, तो पैथोलॉजिकल नेचर फॉर पैरालिसिस ऑफ कोबरा बाइट इज सिमिलर टू Myasthenia gravis। जैसे Myasthenia gravis में क्या होता है कि पैरालिसिस ऑफ मसल होता है, ठीक है, मसल का धीरे धीरे पैरालिसिस होता है या फिर उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहता। कोबरा ने बाइट किया तो उसका जो वेनम है दैट विल आल्सो अफेक्ट द न्यूरोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम and that also causes the paralysis of muscle. So neurological symptoms, paralysis of muscle is common in the Myasthenia gravis as well as cobra bite. So these reversible anticholinesterase, they are useful in the cobra bite also. Myasthenia gravis, atropine sulfate and erythromycin, they are used in combination for the snake bite. Specific antidote क्या होता है snake poisoning का? Anti-snake venom. Anti-snake venom क्या है? Anti-snake venom क्या है? Specific antidote। मतलब अगर आपको मालूम नहीं कि कौन क्या करना है, तो पहले आपको ये कोबरा बाइट हो गया या फिर कौन सा भी स्नेक बाइट हो गया, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटलाइज होके वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि दिखता कैसा था क्या है, वो उसके बाद में वो एंटी स्नेक वेनम देंगे। तो एंटी स्नेक वेनम, यूनिवर्सल एंटी स्नेक वेनम होते हैं आजकल, उसमें बहुत सारे स्नेक्स का एंटी वेनम होता है, वो चढ़ाएंगे आपको जब तक आपके नॉर्मल नहीं होते। वो स्पेसिफिक एंटीडोट है फॉर कोबरा बाइट या फिर स्नेक बाइट, एंटी स्नेक वेनम
For the supportive treatment, these drugs are used: atropine sulfate and entroponium. In case of belladonna poisoning also, these reversible anticholinesterase. So belladonna poisoning, in case of belladonna poisoning, specific antidote is nothing but the physostigmine. ये याद रखो. एट्रोपिन का पॉइजनिंग हो गया, physostigmine. ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का ओवरडोज हो गया, physostigmine. बेलेडोना का पॉइजनिंग हुआ है, physostigmine. क्यूरारे का पॉइजनिंग हुआ है तो एंट्रोपोनियम. एंट्रोपोनियम इज अ ड्रग यूज टू एंटागोनाइज द क्यूरारे पॉइजनिंग और क्यूरारे मसल पैरालिसिस. और एक यूज है उनका रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस का अल्जाइमर्स डिसीज. पर्टिकुलरली दिस रिवास्टिगमाइन एंड अदर रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस लाइक donepezil and galantamine, they are used in the treatment of Alzheimer's disease. Alzheimer's disease क्या होता है मैंने बोला है. So remember, rivastigmine, donepezil, galantamine, these are the drug used in the Alzheimer's disease. Examples of drug which can produce myasthenia gravis. ठीक है, myasthenia gravis कौन से ड्रग बनाते हैं, कौन से ड्रग इंक्रीज करते हैं. There are certain antibiotics like aminoglycoside, polymyxin, norfloxacin, ciprofloxacin, tetracycline, erythromycin. They can produce the symptoms of myasthenia gravis. मतलब weakening of muscle. Antiarrhythmic drug like procainamide, quinidine, lignocaine, propranolol, they also produce myasthenic symptoms. CNS depressant drug like they may depress the respiration in the myasthenia gravis. Miscellaneous drug like chlorpromazine, lithium, thyroid hormone, tuberculin, phenytoin, penicillamine, they can produce the symptom of myasthenia gravis. Irreversible anticholinesterase inhibitors. Irreversible anticholinesterase inhibitor. We will take this and then we'll get. Are you able to are you getting or not? एक बार बोलो मुझे, समझ रहा है नहीं समझ रहा है. ठीक है. Now we'll see irreversible anticholinesterase inhibitor. तो अपन ने देखा है रिवर्सिबल वाले जो है वो जो स्टिग्माइंस वगैरह जो है स्टिग्माइंस वो रिवर्सिबल वाले हैं. और उसका यूज़ क्या है, यूज़ उसका यूज़ है माइस्थेनिया ग्रेविस में, उसका यूज़ है ग्लाउकोमा में, उसका यूज़ है एज ए एंटीडोट स्नेक वेनम पॉइजनिंग में, antidote for belladonna poisoning, antidote for tricyclic antidepressant. Now it's time irreversible anticholinesterase. irreversible वाले क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं acetylcholinesterase एंजाइम को irreversibly. They are nothing but the organophosphorus compounds and they are absorbed practically from all the roots because they will have high lipid solubility. देखो आपके पापा वगैरह जो खेत में जाते हैं वो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड क्रॉप के ऊपर, तो वो ज़्यादा कोई प्रोडक्शन नहीं लेते. तो कभी कभी वो स्प्रे आपके स्किन के ऊपर आ जाता है और स्किन के ऊपर आने के बाद एज दीज पेस्टिसाइड्स विल हैव हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, दे आर एब्सॉर्ब फ्रॉम इंटैक्ट स्किन. आपके स्किन के थ्रू भी एब्सॉर्ब हो जाता है वो, क्योंकि उनको लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है. दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इनहिबिट द एसिटिलकोलिनेस्टेरेस इरिवर्सिबली. दीज आर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड and they are absorbed practically from all sides, all the roots, because they have very high lipid solubility. They can cross blood-brain barrier. Now classification of these, classification of anticholinesterase, irreversible anticholinesterase. So out of that also there are some useful. So therapeutically useful anticholinesterase, irreversible. So ecothiopate, then metrifonate and dipropyl fluorophosphate, DEP. Okay. देन इंसेक्टिसाइड कौन से, फेनथायोन, मेलाथायोन, पैराथायोन एंड मोनोक्रोटोपस. सो ऑल दीज आर द पेस्टिसाइड्स. मोनोक्रोटोपस, मेलाथायोन, पैराथायोन, मोनोक्रोटोपस, ये सब इंसेक्टिसाइड होते हैं. हाईली टॉक्सिक नर्व गैसेस लाइक टैबून, सैरिन एंड सोमान, दीज आर द टॉक्सिक नर्व गैसेस. नाउ थेरापेटिक यूजेस ऑफ दिस ड्रग, दे आर वेरी लिमिटेड यूज बिकॉज दे आर वेरी पॉइजनस. ओके. सो जैसे ऊपर बोले गए थेरेपेटिकली यूजफुल, सो दे आर ओनली थेरेपेटिकली यूजफुल टॉपिकली. ओके. सो इकोथायोपेट इज यूज टॉपिकली इन द केस ऑफ ग्लाउकोमा टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर टेंशन. इन केस ऑफ worm infection, wormies, dichlorowas is given. Okay, dichlorowas is given. Trichophos are anthelmintic. So trichloropos and dichlorowas, so they can be used as an anthelmintic drug. And this ecothiopiate is used in the glaucoma. But बाकी बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, इनका पॉइजनिंग भी हो सकता है, इसलिए उनका यूज़ लिमिटेड है. नाउ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको. ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. ओके. सो पॉइजनिंग में भी आइदर ऑक्यूपेशनल, जैसे मैंने बोला है कि आपके पापा अगर खेती करते हैं तो अगर वो स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड
क्रॉप के ऊपर, तो एक्सीडेंटली उनके स्किन के ऊपर आ जाता है वो, और वो पॉइजनिंग हो जाता है। सो पॉइजनिंग में भी आइदर ऑक्यूपेशनल, एक्सीडेंटल और सुसाइडल। अगर किसी को सुसाइड करना है तो वो पी लेता है वो, ठीक है। एक्सीडेंटल मतलब आपको मालूम नहीं कि वो डब्बे में क्या है, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं और आपने पी लिया है जूस समझ के, दैट इज एक्सीडेंटल। ओके, सो पॉइजनिंग में भी आइदर ऑक्यूपेशनल, एक्सीडेंटल और सुसाइडल। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग? सो ऑब्वियसली व्हाटएवर विल बी द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, ओके, बिकॉज ये इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली एसिटिलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। सो actions of acetylcholine will be there. So muscarinic effect क्या रहेंगे? Meiosis, spasm of bicarbonation, bronchospasm, increased bronchial secretion, sense of tightness in the chest, nausea, vomiting, diarrhea, anorexia, abdominal cramps. So all these are the symptoms of organophosphorus poisoning. Nicotinic action की वजह से क्या symptom आएंगे? Fasciculation, twitching, generalized weakness, and depolarizing type of muscle paralysis. Okay, so these are the symptoms of organophosphorus poisoning. Headache, bradycardia will be there. Now central effect क्या है? Central effect anxiety, confusion, ataxia, hypertension, respiratory depression, convulsion, coma, death due to respiratory paralysis. So these are the central symptoms. Neurotoxic effect क्या है इसका? DFP जो है DFP, and then this MEPOX process demyelination of neurons. जो नर्व होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, उसका डीमाइलिनेशन करते हैं पेस्टिसाइड। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट। एक बार डीमाइलिनेशन हो गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अडल्ट्रेशन ऑफ ओलिव ऑयल जो आप खाते हो ओलिव ऑयल, तो कभी कभी इसमें अडल्ट्रेशन होता है। अडल्ट्रेशन ऑफ ओलिव ऑयल बाय लुब्रिकेटिंग ऑयल कंटेनिंग ट्राइक्लोरोक्रिसिल फॉस्फेट। अडल्ट्रेशन ऑफ योर ओलिव ऑयल विथ दिस ट्राइक्लोरोक्रिसिल फॉस्फेट caused thousands of death in the North Africa। क्योंकि ये जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल उसमें ये होता है ट्राइक्लोरोक्रिसिल फॉस्फेट, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। Now these are the symptoms of organophosphate poisoning. Now we will see treatment of organophosphate poisoning. Treatment of organophosphate poisoning recommended by WHO, World Health Organization। तो इनिशियली क्या करना है आपको? रैपिड गैस्ट्रिक लेवेज, पूरा पेट साफ करना है। गैस्ट्रिक लेवेज मतलब पेट साफ करना। क्लियर द सिक्रेशन फ्रॉम माउथ फैरिंग्स बाय सक्शन, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन, नेजोफैरिंजियल इंटुबेशन। कि जो भी उसका फ्रॉथिंग आ रहा है मुंह में उसको साफ करो, जो भी ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ा है उसको खींच लो पूरा। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन शुड नॉट बी गिवन, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं पॉइजनिंग में, बहुत एक्साइटमेंट में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करेंगे, बहुत सारे करते हैं, लेकिन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन यू शुड नॉट इन केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। नहीं तो पता चलेगा कि उसको तो पॉइजनिंग हुआ है और आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करने जाओगे तो आपको भी पॉइजनिंग होगा, क्योंकि उसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। सो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन शुड बी अवॉइडेड एंड IV फ्लूइड्स एंड नर्सिंग केयर शुड बी देयर। देन स्पेसिफिक एंटीडोट, क्या है स्पेसिफिक एंटीडोट? प्रेलिडोक्सिन, PAM, 2 पाम बोलते हैं उसको, 2 प्रेलिडोक्सिन। सो इट इज़ अ स्पेसिफिक एंटीडोट। इट इज़ नोन एज अ cholinesterase activator. It is known as a cholinesterase activator. Pralidoxim is a cholinesterase activator which is a specific antidote for organophosphorus poisoning. Atropine should not be used in case of patient with cyanosis. अगर किसी का शरीर नीला पड़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसमें एट्रोपिन नहीं यूज करना। एट्रोपिन इज an antidote of choice for both organophosphate and कार्बामेट पॉइजनिंग। कार्बामेट जो होता है, कार्बारिल वगैरह, वो भी पॉइजनिंग करता है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में स्पेसिफिक एंटीडोट का है आपका प्रेलिडोक्सिन। लेकिन कार्बामेट जो है, कार्बामेट पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्सिन यूज नहीं करना है आपको। प्रेलिडोक्सिन इज नॉट एंटीडोट फॉर कार्बामेट पॉइजनिंग, तो कार्बामेट पॉइजनिंग में नहीं करना है। बिकॉज सी प्रेलिडोक्सिन जो है इट इज़ अ कोलिनेस्टरेज एक्टिवेटर। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है वो दोनों साइड के ऊपर बाइंड करता है एंजाइम की, स्टैटिक साइड प्लस एनानिक साइड। सो दिस प्रेलिडोक्सिन रीएक्टिवेट फ्रॉम एनानिक साइड। कार्बामेट जो है वो एक ही साइड पे बाइंड करता है एंजाइम के, एंड दैट इज स्टैटिक साइड। दिस प्रेलिडोक्सिन विल नॉट एक्टिवेट द स्टैटिक साइड, इट ओनली एक्टिवेट द एनानिक साइड। दैट्स व्हाई प्रेलिडोक्सिन इज नॉट यूजफुल इन द कार्बामेट पॉइजनिंग। एट्रोपिन इज यूज्ड। Oximes are cholinesterase activator.
so pyridoxine and all that. So irreversible inhibition of cholinesterase produced by organophosphorus compound. It is due to the phosphorylation of steatotic site of the enzyme. Oximes combines with the phosphorylated groups of these phosphorylated steatotic site, forming the soluble complex, and this result in the setting free steatotic site for reactivation of the enzyme. They are effective in the reactivating or reversing the neuromuscular paralysis. Atropine is ineffective. Pyridine 2-aldoxamine. Pyridine 2-aldoxamine chloride known as a 2-PAM. It is a pyridoxine. Pyridoxine यहाँ पे है वही है. Diacetyl monoxamine DAM, another derivative. It is more potent than for. These are the drugs used in the of your. रखो यहाँ पे जो pyridoxine है that is used as a specific antidote for organophosphate poisoning and not for carbamate poisoning. Carbamate poisoning के लिए क्या है एंटीडोट? एट्रोपिन. कार्बामेट पॉइजनिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कार्बामेट क्या करते हैं, दोनों साइड को बाइंड करते हैं एंजाइम की, स्टैटिक साइड एज वेल एज एनानिक साइड. और जो pyridoxine है जो कोलिनेस्टरेज एक्टिवेटर है वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को बाय बाइंडिंग विद द स्टैटिक साइड. ठीक है, स्टैटिक साइड के ऊपर बाइंडिंग करके एक्टिवेट कर देंगे एंजाइम को जो इनएक्टिवेट हो चुका है. लेकिन कार्बामेट जो है वो दोनों साइड को बाइंड करते हैं और दोनों साइड को फॉस्फोरिलेशन करते हैं. तो दैट्स व्हाई in case of carbamate poisoning this pyridoxine is not useful. This was regarding today's session.